Assalamu alaikum, dear student. I hope all you're fine and safe. Introduction to conceptual data modeling. Uh, Actually, in this lecture, we will study some entity relation diagrams related to a company database and university database. So, this is the first slide. In here, I have included that the first bullet. Uh, the first step in designing database is collecting document and analyzing requirement. ये हमारे पास first step था. And in the second steps bullets, I have included that the next few slides we will show requirement of a company database and university database. As I told you that in this lecture we will study entity relation diagram of company database and university database. What are the requirements and how we will uh, combine all these entities of this database. So we will study step by step in the next coming slides. So in this slide I have included the company database requirements. एक कंपनी डेटाबेस के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको एंटिटी और एट्रीब्यूट्स का पता है कि हमारे पास डेटाबेस में कौन सी एंटिटीज़ होती है और कौन सी एट्रीब्यूट्स होती है. अगर आपको नहीं पता तो नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में हम वो भी डिस्कस करते हैं. ठीक है. द कंपनी इज़ ऑर्गेनाइज इनटू डिपार्टमेंट. इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट होती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, सो उसकी अपनी एक यूनिक नंबर होगी. ठीक है. और उसका अपना एक यूनिक क्या होगा, नेम होगा. और उसमें मैनेजर होंगे. ठीक है. और उसके लोकेशन भी डिफरेंट हो सकती है. ठीक है. डिपार्टमेंट कंट्रोल अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट. उसके पास एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट हो सकती है. एंड देन ईच प्रोजेक्ट कंसिस्ट अ यूनिक नंबर, project name, project location. Okay. The next one is the company store each employee. The company also contain multiple employees. उसके पास बहुत सारे employees होते हैं जो जिसकी अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है. So each employee must have उसके जो सिक्योरिटी नंबर है, नेम, एड्रेस, सैलरी, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ. ये एट्रीब्यूट्स है, ये हम मस्ट रखेंगे किसके बारे में, एक एम्प्लॉय के बारे में. ये सारे एट्रीब्यूट हमें पता होने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास यहाँ पे कंपनी डेटाबेस रिक्वायरमेंट और बुलेट जो है, द कंपनी assign an employee to one department but may work on several projects which are not necessarily controlled by the same department. In the first bullet I have included that this is not important for the employee, that each or a single employee can be controlled by a single department if he will work on different projects. So maybe the project belong to the different the other department. So in their project the same department no need to control his activities. Okay. All those activity can be controlled by the other department who has the project. जिसका प्रोजेक्ट होगा तो वो ही इस एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप्स होंगे और वही कंस्ट्रेंट लगाएंगे. ठीक है. तो एक से ज़्यादा अगर प्रोजेक्ट में वो काम कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट से है तो फिर उसका ताल्लुक सेम अपने डिपार्टमेंट से नहीं होगा. उसका रिलेशन और वो जो भी कंस्ट्रेंट होंगे वो दूसरे डिपार्टमेंट से होंगे. सेकेंड जो बुलेट है यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे कह रहे हैं कि की ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ आवर पर वीक. यहाँ पे कह रहे हैं कि हम उसके वीकली जो वर्किंग आवर है उसका रिकॉर्ड भी अपने साथ रखेंगे हर एम्प्लॉय का, कि ये मैनेजर है या ये हमारे पास एम्प्लॉय वर्कर है, ये एक इसकी ये स्पेशलिटी है, तो उसके वीकली जो आवर है वो भी हम अपने साथ रखेंगे रिकॉर्ड में. की ट्रैक ऑफ द डायरेक्ट सुपरवाइज़र ईच एम्प्लॉय. उसका जो सुपरवाइज़र है जिसके अंडर वो काम कर रहा है तो वो सारा डेटा भी उसका भी हम रखेंगे कि इस सुपरवाइज़र के अंडर ये 10 लोग काम कर रहे हैं. इस सुपरवाइज़र ये मैनेजर जो है ये इस पूरे डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर रहा है. तो ये सारा इंफॉर्मेशन हम अपने पास रखेंगे. ठीक है. Last bullet, but the most important will keep track on the department of each employee for insurance purpose. It keep each dependent. So as I told you in the previous slide that each employee consists different attributes. Okay, we must know the name of that employee, gender, whether he is male or female, and also we must know about the date of birth that person. This is also an attribute, and it was also we can count in composite derived attribute. This is we can use for derived attribute. Okay. Suppose if the date of birth a person is given,
so no need to ask his her age. Why? Because we can easily calculate from the date of birth. Okay, so the last one is relationship to employee. अब ये जो एम्प्लॉय है इसका रिलेशनशिप क्या है, कौन कौन से प्रोजेक्ट के साथ इसका वर्क है, ये मैनेजर है, इसका एम्प्लॉय के साथ रिलेशन है, ये भी हमने अपने साथ रिकॉर्ड में रखना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे हम लोगों ने दी हुई है कि यूनिवर्सिटी डेटाबेस रिक्वायरमेंट। सो हियर we will discuss some attributes entity about the university database. The very first bullet, the main bullet, I have included university keep track of each students. As students, if we want to create database in a student and we collect the data about students, we store student exam, student fee, different entities, different we need to create different tables. So for that we will collect all these attributes. Okay, so a student must contain a unique number. आपकी जो आईडी होती है वो सोशल नंबर जो आप मतलब लॉग इन होते हो कंप्यूटर पे, दैट्स अ सोशल नंबर। ओके, योर लॉग इन आईडी वो एक आईडी होती है। आल्सो नेम्स होता है, करंट एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है, परमानेंट एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, परमानेंट फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स और जेंडर, क्लास, डिपार्टमेंट, डिग्री प्रोग्राम। ओके, ये सारे एक स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है ये स्टोर होता है। जिस तरह LMS में आप लोगों का डेटा स्टोर होता है कि सेक्शन ये है, इस सेक्शन में इतने स्टूडेंट्स है, ये कोर्स है, कोर्स का कोड ये है, सारे स्पेसिफिकेशन वहाँ पे गिवन होते हैं। ठीक है, तो सेम लाइक दैट if you want to create database for the university students, we need all these attributes. Okay, these are the important attributes, and also we can extend and we also can remove some from these attributes. Okay, this is just depend on the administrator or the developer, या जो उसके रिक्वायरमेंट होते हैं उसके बेस पे डिपेंड करता है। तो यूनिवर्सिटी आल्सो कीप ट्रैक ऑफ ईच डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, मैथमेटिक्स है, सिविल है, इंग्लिश है, डिपार्टमेंट है। सो ईच डिपार्टमेंट मस्ट कंटेन अ यूनिक नेम, उसका नेम होगा, सही, ऑफिस, कॉमन सेंस की बात है। डिपार्टमेंट कोड, उसका क्या कोड है, ऑफिस नंबर क्या है, ऑफिस फ़ोन, और ये जो कॉलेज है, ये सारे एट्रीब्यूट्स उस डिपार्टमेंट के होंगे, हमारे पास स्टोर होंगे। ठीक है, so university database requirement, the first bullet included each course has, if a course assigned to a student, so the course must contain a name। ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, नंबर होगी, जो कोड होता है कोर्स कोड होता है। ठीक है, तो वो नंबर उसकी जिक्र यहाँ पे हो रही है। नंबर ऑफ सेमेस्टर आवर, पर सेमेस्टर कितने आवर मतलब वो चाहिए, 44 आवर चाहिए एक सेमेस्टर में, या जितने भी रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी होगी। लेवल क्या है उसकी, ऑफरिंग डिपार्टमेंट है, एक कोर्स है, डेटा स्ट्रक्चर है तो कौन सा डिपार्टमेंट ये ऑफर कर रहा है, इंग्लिश है तो ये कौन सा डिपार्टमेंट, न्यूमेरिक एनालिसिस है so ये कौन सा डिपार्टमेंट ऑफर कर रहा है। सो आल्सो वी विल keep track the record of the department who offer the course. Okay, so each section has, अगर हमारे पास sections है तो sections के क्या होंगे, यूनिक सेमेस्टर्स, पर सेमेस्टर पर कोर्स होंगे, सेमेस्टर होंगे, ईयर्स होंगे, कोर्स होंगे, और एन इंस्ट्रक्टर कि ये सेक्शन है, इसका इंस्ट्रक्शन कौन होगा, इंस्ट्रक्टर कौन होगा जो इसको मतलब लेक्चर देगा, और ये सारे और एट्रीब्यूट भी। ईच ग्रेड रिपोर्ट, अगर मतलब उसको GPA देना है या पोजीशन देना है तो उसके लिए स्टूडेंट का नंबर मतलब ID और सेक्शन, ये स्टूडेंट का नंबर है और इस सेक्शन से है, और ABC जो भी है। ठीक है, इसके अलावा जो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे है ये, तो ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एंटिटीज़ है। तो एंटिटी क्या है, एंटिटी हमारे पास डेटाबेस में वो मेन हेडिंग्स होती है जिसके बारे में हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब एक एम्प्लॉय है, एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या है, ये एंटिटीज़ है। सो कंपनी डेटाबेस हमारे पास जो है, तो एक कंपनी डेटाबेस में जो हमारे पास एंटिटीज़ है वो ये डिफरेंट एंटिटीज़ है। ठीक है, so the first entity is an employee, second entity is departments, projects and dependents.
ठीक है। यूनिवर्सिटी डेटाबेस entities are enumerated here. Students is an entity, department, courses, sections and grade reports. These all are university database entities. Okay, so यहाँ पे हमारे पास कुछ कंसेप्चुअल मॉडलिंग के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशंस है। द फर्स्ट बुलेट यहाँ पे इंक्लूडेड है कि जब हम रिक्वायरमेंट सारी कंप्लीट कर दे तो नेक्स्ट स्टेप उसका जो है वो हमारे पास कंसेप्चुअल मॉडलिंग है। ठीक है, कंसेप्चुअल मॉडलिंग में हम सारे एंटिटी को कंबाइन करते हैं और इस एंटिटी के जितने एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सारे क्या करते हैं, हम वो भी अपने पास नोट करते हैं। सो यहाँ पे इंक्लूड है कि अ कंसेप्चुअल स्कीमा इज कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर एंड इट कंटेन्स। इसमें कौन सी चीज़ें होती है, किस में, कंसेप्चुअल मॉडल में, कंसेप्चुअल स्कीमा में। तो चलिए पढ़ते हैं। सो डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटिटी, एंटिटी के बारे में पूरा डिटेल होता है कहाँ पे, कंसेप्चुअल स्कीमा में। ठीक है, रिलेशनशिप्स होता है कि एक एंटिटी का कौन कौन से अदर एंटिटी के साथ वो रिलेशन है। ठीक है, कंस्ट्रेन है, कंस्ट्रेन मतलब कि कौन कौन से वो एक्टिविटी है जो ये नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब पाबंदियाँ हम पश्तो में उर्दू में कह सकते हैं कि जो पाबंदी वहाँ पे है वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक एप्लीकेशन बनाया है, ठीक है, आपने एक डेटाबेस बनाया है और उसका डेटा जो स्टोर है वो क्लाउड पे है और आपके पास नेट नहीं है। सो देन यू विल नॉट बी एबल टू कलेक्ट, स्टोर, रिट्रीव, अल्टर, update that data. Why? Because that is stored in the cloud, and if you want to do any operation, so you must need internet connection. So here the constraint for this database is internet. ठीक है, तो वो चीज़ हमें रिक्वायरमेंट होती है जिसके बगैर मतलब हम एक एक्टिविटी एक डेटाबेस में परफॉर्म नहीं कर सकते, ये कंस्ट्रेन है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड बुलेट है, तो कंसेप्चुअल स्कीमा इज क्रिएटेड यूजिंग अ हाई लेवल कंसेप्चुअल डेटा मॉडल। लेवल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो ये जो है हमारे पास हाई लेवल कंसेप्चुअल डेटा मॉडल में वो तैयार क्रिएट की जाती है। ठीक है, here we will present entity relation model which is popular high level conceptual model and we will use it designing a database। यहाँ पे हम कुछ रिलेशन मॉडल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में, जिसको हम कनेक्ट करेंगे उसके साथ और रिलेशंस के साथ। यहाँ पे एक्सटर्नल व्यू है, एक्सटर्नल व्यू है मतलब सबसे अपर लेवल है। ठीक है, जहाँ पे यूज़र व्यू करता है डेटा को, तो उसको ये डेटा जो नज़र आ रहा है सीरियल नंबर है और ये फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है और सैलरी है, स्टाफ नंबर, ये तीन और भी एट्रीब्यूट है। जब कंसेप्चुअल लेवल पे हम लोग आते हैं, सो इट कंटेन ओनली 6 एट्रीब्यूट। वाई? बिकॉज वी हैव इग्नोर 2 एट्रीब्यूट। ओके, so this is the data about this same employee, so why not to remove the last name and last name। यहाँ पे क्यों दो दो दफ़ा वो करें, जबकि डेटाबेस में तो हम डुप्लीकेशन और ये कंसिस्टेंसी ये सारे रिमूव करते हैं। ठीक है, तो लास्ट नेम सिर्फ यहाँ पे एक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे स्टाफ नंबर है, सीरियल नंबर है, सो वाई वी इंक्लूड बोथ ऑफ दिस नंबर। ओके, so this is also a unique identifier and this serial number is also a unique identifier, so I think we should put only the staff number। okay, this is a unique identifier and it can uniquely identify in uniquely can retrieve this data। so हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ स्टाफ नंबर डाला, ये हम लोगों ने इग्नोर किया, और लास्ट नेम यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों में है, तो यहाँ पे हम कंसेप्ट बनाते हैं कि लास्ट नेम सिर्फ एक दफ़ा कॉल होगा तो सिर्फ एक यहाँ पे हम लोगों ने डाले। ठीक है, कोड इसका कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, वो आप लेब में पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे। तो ये है, कुछ एंटिटी और एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिंपल डेफिनेशन है अबाउट द एंटिटी रिलेशन मॉडल इज अ हाई लेवल कंसेप्चुअल डेटा मॉडल दैट इज वाइडली यूज इन द डिज़ाइन ऑफ अ डेटाबेस एप्लीकेशन। एंटिटी रिलेशन जो है ये हमारे पास डेटाबेस में एक की पॉइंट है और ये डेटाबेस में यूज़ होती है।
ठीक है। और उसके बारे में हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हम इसके रिलेटेड कलेक्ट करते हैं जो कि उसको स्पेसिफाई करता है, ठीक है। द ER मॉडल रिप्रेजेंट डेटा इन अ टर्म ऑफ एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। एक ER मॉडल जो होता है तो उसमें हमारे पास एंटिटीज़ होती है और कुछ एट्रीब्यूट्स होती है जो कि उस एंटिटीज़ को स्पेसिफाई करता है, ब्रीफली एक्सप्लेन करता है कि इस एंटिटी में ये एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय का नेम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, ठीक है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब कौन से स्पेशलिटी है उसकी, ये उस एंटिटी के बारे में सारे एट्रीब्यूट और रिलेशन है, वो कौन से डिपार्टमेंट में है, उसका किस चीज़ के साथ रिलेशन है। तो ये सारे एक एंटिटी रिलेशन जो डायग्राम है ये उसमें सारे एलिमेंट्स होती है, ठीक है। Next slide में here I have included something shorts about the entity and relationship, so you can see students courses and professors, these are entities, ठीक है, ये entities है। अब स्टूडेंट का रोल नंबर, कोर्स कितने टाइम में ख़त्म होगा, कोर्स का कोड क्या है, कौन से डिपार्टमेंट ने ऑफ़र किया है, ठीक है, उसके क्रेडिट आवर कितने हैं और कितने चैप्टर उसमें मतलब पढ़ना है, तो ये सारे कोर्स के एट्रीब्यूट्स है। प्रोफेसर का नाम, उसका मतलब जो लेक्चर उसने कहाँ से पढ़ा है, उसकी स्पेशलिटी कौन सी है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, डेटा स्ट्रक्चर का है, इंग्लिश का है, तो ये सारे उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ऑफिस नंबर, ये उसके एट्रीब्यूट हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे रिलेशनशिप्स है, इस एंटिटी का रिलेशनशिप मतलब किसके साथ ये कनेक्ट होगा, हु टेट व्हाट, ओके, हु टीचेस व्हाट। यहाँ पे ये जो एंटिटी गिवन है तो कौन मतलब कौन स्टूडेंट कौन से कोर्स लेंगे, उसका रिलेशन कौन से कोर्स के साथ होगा, और कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट मतलब टीच करेगा, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा। तो ये सारे कुछ इस तरह के रिलेशंस होते हैं। अगर आप लोग रियल लाइफ में यूनिवर्सिटी में देखें तो एक स्टूडेंट का जिसके साथ मतलब कोर्स है, जिसके साथ क्लास है, तो वो वहाँ तक लिमिटेड है और उसके साथ क्लास ले सकता है। दूसरे टीचर के साथ वो नहीं बैठ सकते, क्यों, क्योंकि उस सेमेस्टर में उसको जो कोर्स अलॉट हुई है तो वो स्पेसिफिक टीचर के पास है और इसका रिलेशनशिप जो है उस टीचर के साथ है, ठीक है। हमारे पास एंटिटी जो है तो उसके डिफरेंट कुछ रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। An entity has its own data in the form of table. So already you know that entity is something, maybe a place, an employee, a students, about which we need to collect multiple attributes, okay, and these attributes we can store in the form of like a table. So already you know the data is stored in table nowadays in a relation database model, जिसमें रोज होती है और कॉलम्स होती है। 3 मॉडल पढ़े थे ना, तो उसमें जो रिलेशन मॉडल है वो आजकल यूज़ होता है और इसमें डेटा जो है टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। कंटेन एटलीस्ट 2 वैलिड एट्रीब्यूट, अगर आपके पास एक एंटिटी है तो उसके कम से कम उसके 2 एट्रीब्यूट्स होंगे, कम से कम, ठीक है। मोर देन 2 एट्रीब्यूट्स आल्सो उसके हो सकते हैं, लेकिन 2 कम से कम हो सकते हैं। कंटेन एटलीस्ट 1 की आइडेंटिफायर, जिस तरह अभी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है, उसमें फैकल्टी नंबर था या सीरियल नंबर था या आप लोगों का या एक स्टूडेंट का जो आईडी होता है, तो वो एक प्राइमरी की बन सकती है, वो एक यूनिकली आइडेंटिफायर हो सकता है। अगर हम नाम से किसी को मतलब वो आइडेंटिफायर बनाए तो एक नाम बहुत से लोगों का हो सकता है। अगर हम एक स्टूडेंट को कॉल करेंगे या उस नाम से उसका कोर्स असाइन करेंगे तो वो मल्टीपल सेम नाम को असाइन हो जाएगा। सो उसके लिए एक सिंपल और यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए जो कि आईडी है। तो आईडी के ज़रिए हम एक स्टूडेंट को अकाउंट सेक्शन में मतलब फ़ी के जो इश्यूज़ है, जो स्पेसिफिकेशन है, वो बिल्कुल पार्टिकुलरली स्पेसिफिकली उस स्टूडेंट को मतलब उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कोर्स कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ है डेटाबेस में, तो वो यूनिकली आइडेंटिफायर के ज़रिए हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
So an entity may be a person or a place, object, even and concept. As we discussed in the previous lecture, that an entity may be a person or a place or an events. Okay, तो ये हो सकती है. And also the simple definition of an entity I have included here again. That an entity is something about which we store data for use by a manager and workers. An entity can be either an item. ये सारे जो है हमारे पास एक entity हो सकती है और उसके ये employees, students या patients हो सकती है. सिटी या डिपार्टमेंट हो सकता है. डिपार्टमेंट का नेम क्या है, लोकेशन क्या है, वो किस चीज़ का डिपार्टमेंट है. ठीक है, ये सारे उसके एट्रीब्यूट हो सकते हैं. तो आप इसके कोई आपसे पूछे तो ये आप इजीली कह सकते हो कि एट्रीब्यूट मतलब एंटिटी क्या है. एंटिटी इज समथिंग. समथिंग से मतलब है कि एंटिटी में बी अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट और concept about which we need to combine to collect multiple attributes that specify the specific entity. Okay, if an entity is student, so the attributes of this entity will be student name, id, course और इसके और भी हो सकते हैं एट्रीब्यूट. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स है. सो एन एट्रीब्यूट इज़ अ प्रॉपर्टी दे डिस्क्राइब एन एंटिटी. ये हमारे पास वो प्रॉपर्टीज़ है, वो करेक्टरिस्टिक है, वो स्पेसिफिकेशन है जो क्या करता है, उस एंटिटी को स्पेसिफाई करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसको प्रेजेंट करता है. ठीक है, मतलब उसको एक नोन फॉर्म में लेके आता है कि अब ये स्टूडेंट है तो कौन सा स्टूडेंट है, किस डिपार्टमेंट से है, उसकी आईडी क्या है, ये पूरा उसको एक सही अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लेके आता है. ठीक है, सो द एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी कार. एक कार है तो उसका जो चेसिस नंबर है और उसका कलर कौन सा है, तो ये एट्रीब्यूट हो सकती है. ये हमारे पास यूनिकली आइडेंटिफायर है क्योंकि चेसिस नंबर हर कार का डिफरेंट होता है. कलर हमारे पास मल्टी वैल्यू मतलब कंपोजिट एट्रीब्यूट या मल्टी वैल्यू हो सकता है क्योंकि डिफरेंट कलर में हो सकता है. एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और एड्रेस है. ये सारे हमारे पास इसके एट्रीब्यूट्स है. एट्रीब्यूट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, कंपोजिट. अब आपके पास सिंगल वैल्यू या सिंपल एट्रीब्यूट जो है जेंडर है, वो मेल है या फीमेल है, ये आपके पास क्या है, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है. कंपोजिट एट्रीब्यूट कौन से एट्रीब्यूट, वो एट्रीब्यूट जिसमें एक से ज़्यादा मतलब आपके पास क्या होते हैं, कंपोनेंट होती है. ठीक है, तो वो कंपोजिट एट्रीब्यूट है. आपका एड्रेस है तो एड्रेस में अगर आप देखें तो हाउस नंबर है, फिर उसके बाद स्ट्रीट है, फिर उसके बाद वो जो टाउन है जो भी है वो आता है. ठीक है, सो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हमारे पास कार है. as I told you in the very previous slide, the multi-value attribute is a color of a car entity. okay, so हमारे पास डेरिव एट्रीब्यूट कौन से एट्रीब्यूट है, वो एट्रीब्यूट I know the date of birth of a person. okay, so I can easily find the age of that person, include his age in the required form, so I can easily find from the date of birth of that student. सो ये हमारे पास क्या है, ये डेरिव एट्रीब्यूट है कि मैंने क्या किया, डेट ऑफ बर्थ से उसके एज को डेरिव किया. ठीक है, ये डेरिव एट्रीब्यूट हैं. तो ये सारे हम लोग डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें सामने आ गया के साथ ये भी डिस्कस करूँ. ये सारे आप लोग पढ़े और जो भी पॉइंट आपको समझ ना आए तो आप क्यूरी करें, ज़रिए आपको समझाऊँगा. थैंक यू.